prepare a report in soft copy in a Word document as per the format followed by EY, Ernst and Young, in its valuation reports. Is it okay now? DCF अभी नहीं किया, but that is why I have given a disclaimer in the bracket that whatever has been taught, okay, and यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है ये assignment. This assignment has not ended over here because our next topic will be to compute the free cash flow, okay. But इससे पहले जो बैलेंस इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दिया हुआ है वहां से ये सारे कंपोनेंट जो इस स्लाइड में है अभी दिख रहा है आपको, whatever is visible in this slide, compute all of them. Try to compute all of them and give me a report that should we invest in this firm or should we not invest in this firm. What is your take as an investor? If somebody wants to acquire this firm, give different perspectives. That is what critical thinking is all about. What I'm teaching you here is to think on each element. Okay. And one more thing, download ये जो annual report मैंने अभी term use किया for last 3 years. Okay, last 3 years. And you can use moneycontrol.com to download these annual reports. कहाँ से करते हो? जानते हो कौन सा सेक्शन में जाके वो रिपोर्ट्स डाउनलोड करना पड़ता है? गूगल से हो जाता है, बट गूगल में नहीं मिलता है, तब क्या करो? Do you know that or should I show you? Now say for example, a company called Infosys, okay? जैसे Infosys पे once you click on this company, then just scroll down and can you see these particular menus? Overview, chart, MC Insights, MC Technicals, price and volume, news, forum. Now go to financials. Can you see this link? Financials, click on it. Once you click on financials, you will come to this type of chart. And on the right hand side, can you see balance sheet, profit and loss account? Can you see it? Just click on it. Let's see what happens. Now, under financials, can you see a small red PDF mark? And once you click it,
automatically these annual reports will open. Okay, another way you can do it is, if you want the consolidated result, but I will prefer that you go through the annual report, because in annual report the notes to the accounts will be very wide. That will give you a lot of insights. Okay, so this is the exercise you need to do. Okay, and after doing this exercise, once you submit it, okay, ग्राफ्स चार्ट्स बनाना जैसे ENY में दिखाया गया है. मैं एक रिपोर्ट खोल के आपको दिखा दे रहा हूं कि कैसा है. जैसे ENY का ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो रिपोर्ट आपको मैंने भेजा था, दिख रहा है ना स्क्रीन? फर्स्ट इज एग्जीक्यूटिव समरी, देख रहे हो किस तरीके से दिया हुआ है. ठीक है. Now this executive summary should be written at the last, because after completing that assignment, whatever will be the key points that what has been done, that will be covered in the executive summary. Okay. And इसी तरीके से आप एक कंटेंट पेज डिजाइन करना, ये सारे वर्ड में हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है. कैसे होता है दिखा दे रहा हूं. ये सब बनाना सीखो, क्योंकि देखो इन सब के लिए तो क्लास के लिए मैं अपॉइंट नहीं हुआ हूँ, बट फिर भी मतलब मेरा नसीब ऐसा है कि मुझे सिखाना पड़ रहा है. तो फर्स्ट इज टाइटल देना, वैल्यूएशन रिपोर्ट. ओके, तो वैल्यूएशन रिपोर्ट जैसे ही आपने लिख दिया तो यहाँ पे इसे टाइटल कर देना, ये बड़ा हो गया. ठीक है. उसके बाद नीचे आना, नीचे आने के बाद से फॉर एग्जांपल आप पहले कर रहे हो, फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग इन्वेस्टेड कैपिटल. ठीक है. नेक्स्ट आप नो प्लैट कंप्यूटेशन. नेक्स्ट ROIC. नेक्स्ट फ्री कैश फ्लो. अब ये जो चारों एलिमेंट हैं, इस चारों एलिमेंट को आपने हेडिंग 1 दे दिया. Should I do it again? Got it? अब इसके नीचे अगर और कुछ आपको कैलकुलेशन करना है या कुछ भी करना है तो वो आप यहाँ पे कमेंट्स लिखो या कुछ भी आप लिखने की कोशिश करो. अब ग्राफ चार्ट्स कैसे बनाना है वो आप एक्सेल में जानते हो, आई थिंक, राइट? या टैब्ल्यू में करो, कैसे भी करो, दैट्स योर हेडेक, दैट्स नॉट माय हेडेक. अब उसके बाद आप यहाँ पे इसको सेकंड पेज में ले आना, क्योंकि ये रिपोर्ट हमेशा चालू जो होता है वो आपका सेकंड पेज से चालू होता है. पहला पेज जो होगा आपका कंटेंट पेज होगा. तो सबसे पहले क्या, जैसे मैंने आपको बताया था, एग्जीक्यूटिव समरी ये आपका होना चाहिए, राइट? अब जब कंटेंट आप बनाओगे तो यहाँ पे वैल्यूएशन के नीचे आना, फिर आप जाना रेफरेंसेस में, आप जाना रेफरेंसेस में. थोड़ा सा हैंग हो रहा है मशीन मेरा, बहुत कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं. तो ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में टेबल ऑफ कंटेंट्स दिख रहा है. तो टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक करो एंड उसके बाद या तो पहले वाला सिलेक्ट कर लो, ऑटोमेटिक टेबल 1, ठीक है, या टेबल 2, जौन सा भी फॉर्मेट तुम्हें ठीक लगे. तो इसको जैसे ही करते हो तो देखो यहाँ पे आपके पास क्या एक कंटेंट्स बन के आ गया, राइट? जो समर इंटर्नशिप में बाहर आप लोग प्रोजेक्ट देते हो प्रिंटिंग करने के लिए, तो वो भी ऐसे कुछ करके देता है. तो अब क्या, अब देखो यहाँ पे कंट्रोल एंड इस लिंक पे जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूं तो ऑटोमेटिक वो उस सेक्शन में लेके चला जा रहा है, राइट? तो इस तरीके का रिपोर्ट आपको भी बनाना है. बना के क्या, जनरल तौर पे जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस में क्या पीडीएफ में इसे कन्वर्ट किया जाता है, पीडीएफ में कन्वर्ट करके फिर सबमिट किया जाता है, राइट?
तो देखो ये जो वैल्यूएशन रिपोर्ट है, इस वैल्यूएशन रिपोर्ट में भी यहाँ पे एग्जीक्यूटिव समरी में ग्राफ बनाएंगे हम उसमें एक्सेल में, वो यहाँ कैसे शो करेंगे? देखो वन इज या तो स्क्रीनशॉट से आप कर सकते हो, दैट इज वन. अनदर वे इज लिंकिंग. आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों में आप इंटीग्रेशन कर सकते हो. उसके लिए एक सेपरेट क्लास लेना पड़ेगा. उसमें आप कोई भी चेंजेस करते हो एक्सेल में, दैट विल ऑटोमेटिकली गेट रिफ्लेक्टेड इन वर्ड एंड इन पावर पॉइंट ऑल्सो. नो, वर्ड में ग्राफ्स आप बनाने, देखो ये जो है वो तो आपको नॉर्मल ड्राइंग से बनाना पड़ेगा ना, वो तो शेप से आप बना रहे हो. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पिक्टोग्राफ्स. पिक्टोग्राफ्स मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि डेटा से जो बन रहा है. तो देखो टेबल तो आप कॉपी पेस्ट, मैं ये बोल रहा हूँ कि सपोज देयर इज अ मिस्टेक इन योर टेबल. Are you getting my point? Now you want that whatever changes you are doing it in Excel, it should also get automatically reflected in this Word document as well. ठीक है, तो उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में या तो आपको मैन्युअली वो वर्ड डॉक्यूमेंट में आके करना पड़ेगा अगर आप टेबल पेस्ट कर दिए हो तो. बट आई एम टेलिंग यू अ प्रोसेस वेयर यू कैन इंटीग्रेट वर्ड डॉक्यूमेंट एंड एक्सेल. समझ रहे हो? तो नेक्स्ट क्लास में मैं उसको आपको दिखाऊंगा. अभी टाइम तो देखो जस्ट 2 मिनट बचा है, मुझे अब फर्स्ट ईयर में भी जाना पड़ेगा. सो यू नीड टू फॉलो दैट. ठीक है, और इस तरीके का देखो. और एक देखो यहाँ पे जो चार्ट्स बने हुए हैं, एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करो. कलर उसने एक ही यूज किया है, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन किया है रिपोर्ट में. देखे हो? सिर्फ शेड्स सिर्फ डिफरेंट है और कुछ नहीं. तो इस रिपोर्ट्स को एक बार अच्छे से देखो कि किस तरीके से इन लोगों ने बनाया है इस रिपोर्ट को. ये जो जितने भी चार्ट यहाँ पे है ना, ये सारा एक्सेल में बनता है, सारा A to Z. क्या चीज? हाँ, बात बराबर ही है. बट द ओनली थिंग इज दैट कि अगर आप कोई चेंजेस करते हो या कुछ करते हो, कभी कभार ऐसा होता है कि आप ड्रैग कर लिए या कुछ कर लिए तो तब डिस्टॉर्ट होता है. तो उस वजह से जैसे सार्थक ने पहला ऑप्शन बताया कि स्क्रीनशॉट इज द बेस्ट ऑप्शन, तो वहां पे क्या कोई चीज हिलता नहीं है. बट उसका भी सोल्यूशन है. आप एक ही चीज को बहुत तरीके से आप कर सकते हो, तो उसका भी सोल्यूशन है. एक्सेल में भी सोल्यूशन है उसका. उसमें लॉक करना पड़ता है. ठीक है, ऑब्जेक्ट को लॉक करना पड़ता है. ऑब्जेक्ट जैसे ही लॉक हो जाएगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा. So anyways, I'm ending the class today, but next day we'll be learning free cash flow. And free cash flow होने के बाद I think unit 1 will be over. Sorry, unit 2 का जो पहला चैप्टर है that will be over. Now we'll move on to the cost of capital. Unit 2 काफी बड़ा है, पहले ही बता रहा हूँ.
है